Assalamu alaikum everybody. We'll be starting with the new chapter hormones today. लैम्पिंग का पेज बता देती हूँ क्योंकि उस दिन हमने पता चला था मुझे कि हमने हार्मोन्स नहीं किया है तो first we'll be starting with hormones, then we'll be moving to reproduction. Page number 231, lamping. Page number 231, lamping. Okay. What is a hormone? We'll start with that. Just a minute, a few more people are in the waiting room. Okay. Hormones. Okay, what are hormones? Hormones are basically chemical substances, okay, and they are secreted in the body, and they actually affect different kinds of metabolic reactions, different kinds of functions of our body, right? So how will you define a hormone? A hormone is actually defined okay, they influence different metabolic activities of the body. These activities, metabolic activities, can be the activities that are related to growth of the body. Okay, they can be activities related to different क्या कहेंगे, storage of substances of the body, or we can say reabsorption of substances, जैसे कि हमने वो पढ़ा था, ADH पढ़ा था excretion के टॉपिक में, ठीक है. तो different hormones हमारी बॉडी में secrete करते हैं, and they actually trigger, influence different kinds of metabolic activities from our body. Now, hormones are secreted by organs called as glands. Hormones are secreted by organs called glands. There are two
types of glands in our body. ठीक है, there are two kinds of glands in our body. Number one is exocrine glands and number two endocrine glands. एक मिनट, ठहरो बेटा, जरा मैं वेटिंग रूम में लोगों को अंदर करूँ, देरा स्टूडेंट्स. ओके, endocrine glands. अच्छा, endocrine glands are also known as ductless glands. What do you mean by ductless glands? What are ducts? ठीक है, ये duct glands हैं. ठीक है, अगर मैं इनको लिखूं, glands that have ducts, और endocrine जो है वो ductless glands हैं. जी, what do you mean by ductless glands? Exocrine are glands that have ducts and endocrine are ductless glands. No idea? अच्छा ठीक है, I get the point कि किसी को कुछ भी नहीं पता इस बारे में. I tell you. देखो, ये अगर आपका एक ग्लैंड है, ठीक है, और हार्मोन जो है वो टारगेट ऑर्गन पे अफेक्ट करता है. ठीक है, ये आपका ग्लैंड है, मैं अभी 2 मिनट में लेबल करती हूँ. ये आपका ग्लैंड है और ये आपका टारगेट ऑर्गन है. तो ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक एक पाइप नुमा डक होगा. डक कहते हैं पाइप को. ठीक है, जो हार्मोन को क्या करेगा, वहाँ से यहाँ तक अपने टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा. ठीक है, मैं किस तरह से बताती हूँ आपको. ये आपका ग्लैंड है, ठीक है, नजर नहीं आ रहा, इसको यहाँ रखते हैं. ये आपका ग्लैंड है, ठीक है, और ये आपका टारगेट ऑर्गन. टारगेट ऑर्गन कहते हैं उस ऑर्गन को, मैं अभी लिखवा देती हूँ, जहाँ पे हार्मोन एक्ट करता है. ठीक है, टारगेट ऑर्गन उसको कहते हैं. एंड दिस पार्ट हियर इज द डक. ठीक है, this is the duct. Duct is basically a pipe that carries the hormone from the gland to the target organ. ठीक है, duct is basically what? Duct is a pipe carries the and what is the target organ, ये भी बता दूं मैं आपको. And a hormone, an organ where the hormone carries its function. ठीक है, so that is a target organ, and a gland we know is an organ that releases the hormone. ठीक है, तो gland से target organ तक अगर कोई डक होगी जो कनेक्ट कर रही होगी, और हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो इस डक के थ्रू जो है वो अपना जो भी सब्सटेंसेस हैं हार्मोन के, वो सारे इस डक में यूं करके ट्रांसफ़र होके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डकलेस ग्लैंड्स होते हैं.
डकलेस ग्लैंड्स का मतलब होता है कि ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जब भी मैं रेड बना रही हूँ, ठीक है, और ब्लड वेसल के साइड पे ये आपका यहाँ पे ग्लैंड है और यहाँ कहीं दूर दराज में आपका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, और बीच में आपके पास क्या होगी, एक ब्लड वेसल होगी जो कहीं जा रही होगी। अब जो हार्मोन होगा वो क्या करेगा, सिंस ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन में आने के लिए कोई डक्ट नहीं है, सिंस ग्लैंड से, ठीक है, ये आपका ग्लैंड है और ये आपका टारगेट ऑर्गन है, ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन में आने के लिए कोई डक्ट नहीं है, तो जो भी हार्मोन ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, वो आपका बेसिकली ट्रांसफ़र होगा थ्रू द डिफ्यूजन मेथड, यानी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन डिफ्यूज़ होगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा वो हार्मोन डिफ्यूज होगा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा में हार्मोन्स भी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, तो ब्लड के थ्रू वो ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होने के बाद जब वो टारगेट ऑर्गन के करीब पहुंचेगा तो ब्लड वेसल से बाहर निकल के वो टारगेट ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके ज़ैनब, ठीक है, तो डकलेस ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डकलेस ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्स नहीं होती, ठीक है, हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए ग्लैंड्स जो है हार्मोन्स डिफ्यूज़ करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड जो है का प्लाज्मा जो होता है वो इन हार्मोन्स को कैरी करता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जिनमें टारगेट ऑर्गन तक एक कनाल जा रहा होता है, एक पाइप जा रहा होता है, एक डक्ट जा रहा होता है और इसी डक्ट के थ्रू जो भी आपका हार्मोन होता है वो ट्रांसफ़र होता है। क्लियर ज़ैनब? सिंस यू जॉइन लेट लेट आई डू अ क्विक रिकैप, ठीक है, कि hormones are chemical substances that influence different metabolic activities of the body, ठीक है, we have done quite a few hormones in the past year। अगर आपको याद होगा हमने इंसुलिन नाम का हार्मोन किया है, हमने ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन किया है, हमने ADH एक्सक्रीशन में हार्मोन किया है, ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट हार्मोन्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, और ये सारे हार्मोन्स आपने देखा है किस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं, करवाते हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल हार्मोन्स अ केमिकल सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स, दो तरह के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, द फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन, द वन अंडरलाइंड इन रेड, ठीक है, दीज आर ग्लैंड्स विद डक्ट्स, डक्ट्स कहते हैं इस चीज़ को, एक पाइप होता है जो एक्चुअली कनेक्ट करता है आपके ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन को, ठीक है, और टारगेट ऑर्गन वो जगह होती है जहाँ पे जो भी हार्मोन को काम करना होता है वो जाके काम करता है, जैसे मैं इंसुलिन की एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज में, लेकिन इंसुलिन का एक्शन जो होता है वो लिवर में होता है, इंसुलिन अगर आपको याद हो it actually converts excess glucose into glycogen and stores it in the liver, right? So what is the gland of insulin? Pancreas is the gland of insulin, ठीक है, and what is the target organ of insulin? Liver, यानी प्रोड्यूस कहीं हो रहा है और काम कहीं कर रहा है, सही है, तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ टारगेट ऑर्गन। अच्छा, दूसरी तरफ हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर एक्चुअली डकलेस ग्लैंड्स, डकलेस ग्लैंड्स का मतलब है इन ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के दरमियान कोई पाइप या डक्ट नहीं होती जो दोनों को ज्वाइन कर सके, इसीलिए हार्मोन्स जब ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं दे आर डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड वेसल एंड द ब्लड कैरीज द हार्मोन टू द टारगेट ऑर्गन, ठीक है, और वहाँ भी डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर निकलते हैं और फिर टारगेट ऑर्गन में काम करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लिख देती हूँ, endocrine hormones are transported by the blood plasma to its target organ. ठीक है, endocrine hormones are transported by the plasma to its target organ. वो खुद नहीं हो सकते। जी सिबाल, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपके पास ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, टीयर ग्लैंड्स हैं जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, टीयर्स भी हार्मोन हैं, ठीक है, ये सारे तुम लोग ने पढ़ा होगा, आई में टीयर डक्ट पढ़ा था जिसके थ्रू जाता है, टीयर्स निकलते हैं, ये सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बेसिकली हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इंसुलिन है, इट्स एन एंडोक्राइन हार्मोन, एडीएच है एंडोक्राइन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन होता है, अभी हम पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन है, ये भी एंडोक्राइन हार्मोन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और ये एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। एक्सोक्राइन हार्मोन्स के बारे में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, एंडोक्राइन हार्मोन्स ही हमारा सिलेबस का मेजर पार्ट है और हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन हार्मोन्स ही पढ़ने हैं। ओके, so this part, can I erase the board and take a new sheet, or has everybody written what was to be written from my lecture? मैं board erase कर दूं? प्लीज मुझे चैट में यस करके बता दिया करो, काफी है मेरे लिए। अच्छा जी, नो, यस, नथिंग, ओके, एंजेला सेड यस, मीना सेड यस, थैंक यू। Okay, so we will be discussing endocrine hormones, ठीक है। If you look at page 233, ठीक है, 233 पे आप देखोगे तो एक फिगर बनी हुई है 15.1, ठीक है, 233 लैम्पेंग की 15.1 फिगर बनी हुई है, ठीक है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पर डबल स्टार्स बना लो, ठीक है। अक्सर आपके पास ये फिगर दी जाती है और आपको लेबल करना होते हैं ग्लैंड्स के नाम, या फिर अक्सर खाली इंसान का ढांचा दिया जाता है और आपको वहाँ पे ग्लैंड्स ड्रॉ करके लेबल भी करने होते हैं, ठीक है। आपको कहा जाता है ड्रॉ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आप सारे ये जो ड्रॉ हुए हैं ये सारे ड्रॉ करके उनको लेबल भी करना होता है। आपके पास आपकी स्क्रीन्स पे जो है क्या कहते हैं, मैंने शेयर की है एक स्लाइड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट वी विल बी स्टडीइंग। वन मैंने गायब कर दिया, इट इज़ अ पीनियल ग्लैंड, ठीक है, इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड सिमिलरली 3 भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन विल जस्ट गो थ्रू द रीडिंग पार्ट, क्योंकि वो आपकी बुक में भी है, तो विल जस्ट रीड थ्रू इट, ठीक है। लेकिन 1 और 3 आपके सिलेबस में नहीं है, ना थायराइड ग्लैंड आपके सिलेबस में है, ना पीनियल ग्लैंड, जो 1 मैंने यहाँ से ये दिमाग के पास है, ये इरेज कर दिया था, वो है। बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सब आपके सिलेबस में। वील स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड। इफ यू लुक एट पिक्चर 15.1 और यू लुक एट पिक्चर ऑन द स्क्रीन्स, ठीक है, द फर्स्ट ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, you can see it is the pituitary gland and this is also known as the master gland of your body, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको हार्मोन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया है, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कहाँ चला गया, सॉरी,
ठीक है, the reason why it's known as the master gland of the body is that it not only secretes hormone but it also controls the secretion of other hormones by glands. महक बेटा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाओ तो जो है क्या कहते हैं आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आई लेट यू इन द क्लास. अच्छा, pituitary gland is also known as the master gland of the body. Why? Because it not only secretes hormone. हमने ADH पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज यू कैन सी इज फाउंड अंडरनीथ द हाइपोथैलेमस. ठीक है, हमने ब्रेन में भी इसको पढ़ा हुआ था. ठीक है, तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट नॉट ओनली सिक्रीट्स the hormone ADH but it also controls other glands for the secretion of hormones. ठीक है. अच्छा, ADH हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, एंड इन अ वाइल व्हेन वी मूव टू द हार्मोन्स आई विल बी डिस्कसिंग ईच हार्मोन. ठीक है. अच्छा, फिर उसके नीचे आप गले की तरफ आएंगे तो एक थायराइड हार्मोन दिया हुआ है. अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी आपकी पिक्चर 15.1 में भी थायराइड हार्मोन दिया हुआ है, और यहाँ भी है और वहाँ पे सेम लिखा हुआ है कि थायराइड हार्मोन in our necks makes a hormone called thyroxine. ठीक है, and it controls the metabolic rate of the reactions. Too little the chemical reactions are slow. यानी अगर कम थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा हो जाएंगे. Yes beta Abdul Wasi, definitely I'll be uploading the recording and I always upload the recording. सिर्फ ट्यूसडे वाली रिकॉर्डिंग मेरे पास डाउनलोडेड है लेकिन अपलोड इसलिए नहीं हुई है क्योंकि व्हेन आई सैट डाउन ऑन फ्राइडे टू अपलोड द वीडियो, तो नहीं फ्राइडे वाली रिकॉर्डिंग रह गई है, शायद कोई एक रह गई है, तो जो है आपकी यूट्यूब की अपलोडिंग की लिमिट ऑफ हो चुकी थी. ठीक है, तो इस वजह से जो है आई कुडंट अपलोड दैट वीडियो बट डेफिनेटली आई विल बी अपलोडिंग. फ्राइडे को तो आपने टेस्ट दिया था, ट्यूसडे का अपलोडिंग रह गई है बस. ठीक है. अच्छा, इस फ्राइडे में लोकोमोशन का टेस्ट लूंगी, याद रखना. लोकोमोशन नहीं, क्या पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को इकोलॉजी से पहले? लोकोमोशन ही पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? फूड बायोटेक्नोलॉजी मिस. फूड बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी मैं दूसरी क्लासेस के साथ जी. फूड बायोटेक्नोलॉजी का एमसीक्यू टेस्ट लूंगी जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी. बस उसी का टेस्ट इस फ्राइडे को है. ठीक है. अच्छा, अनाउंसमेंट में डाल दूंगी ताकि एब्सेंटीज को पता चल जाए, लेकिन जो है क्या कहते हैं आई ऑलरेडी टोल्ड इट इन क्लास फ्राइडे को इंशाल्लाह. ओके, सो थायरोक्सिन इज अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अगर ये हार्मोन कम होगा तो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, अगर ये हार्मोन ज़्यादा होगा तो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस फास्ट हो जाएंगे. लेकिन दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो दिस इज़ जस्ट रीडिंग मटीरियल. ओके. अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए नंबर 4 पे, और नंबर 4 को छोड़ दीजिए, नंबर 4 भी हमारे सिलेबस में नहीं है. नंबर 5 पे आए. नंबर 5 आप देख सकते हैं किडनीज के ऊपर ट्रायंगुलर सब्सटेंसेज हैं. ठीक है, किडनीज के ऊपर ट्रायंगुलर सब्सटेंसेज हैं. सही है, ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं. अगर आप फिगर 15.2 देखोगे 233 पेज पे, वहाँ अलग से एक मैग्नीफाइड इमेज भी दिया हुआ है एड्रीनल ग्लैंड्स का. ठीक है, ये ट्रायंगुलर सब्सटेंसेस होते हैं ऑन योर किडनीज, और इनका काम होता है टू मेक द हार्मोन एड्रेनलिन. एड्रेनलिन इज अ इमोशनल हार्मोन. इट इज सिक्रीटेड इन द स्टेट ऑफ इमोशंस. इज अ टेम्पररी हार्मोन, हर वक्त नहीं सिक्रीट होता. ठीक है, और खैर सिक्रीट तो इनमें से कोई भी हार्मोन अब तक जितना मैंने बताया है थायरोक्सिन के अलावा सब हर वक्त नहीं सिक्रीट होते. तो जो है क्या कहते हैं
ये भी सिर्फ इमोशंस के दौरान सिक्रीट होता है। अच्छा, फिर आपके पास किडनीज के साथ साथ ही आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन और भी है, थोड़ा बड़े साइज का, दैट इज द पैनक्रियाज। वी ऑलरेडी नो द पैनक्रियाज secrete insulin and the function of insulin is to and of course glucagon, and insulin converts the excess glucose into क्या कहते हैं ग्लाइकोजन, जबकि ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को शुगर में वापस कन्वर्ट ग्लूकोज में करता है। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आ जाएं। नीचे आके इन्होंने बिल्कुल गलत लेबल किया हुआ है, ये गलत है। मेरा कर्सर देख रहे हो, मेरा कर्सर अगर आप देखोगे ये लेबलिंग यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने यूट्रस को जो है लेबल कर दिया है, बिल्कुल नहीं, ओवरी ये है। ये जो क्या कहेंगे, एक सींग नुमा लग रहा है, उसके ऊपर जो ये छोटा सा एक सर्कल है, दिस इज द ओवरी। ठीक है, दिस इज द यूट्रस, ये नहीं लेबल करना, दिस इज द ओवरी। एंड ओवरी प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन में ओ इज साइलेंट, ई से प्रोनाउंस करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये दोनों फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं। On the other side, you can see the testis, which is present in the penis of the male. ठीक है, and it produces testosterone, a male hormone. ठीक है, so these are all the hormones that we will be discussing one by one. Let's start with ADH. ADH, what does that stand for? Antidiuretic hormone. Very good, antidiuretic hormone, also known as भूल गए तुम लोग सब, वैसोप्रेसिन। अच्छा, क्या काम होता है इस हार्मोन का, जल्दी से बताओ कोई भी। हिंट दे देती हूँ, एक्सक्रीशन के टॉपिक में पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है ठक ठक पेजेस पलटना शुरू हो जाएं, थोड़ा जहन पे जोर डालें। नहीं याद आ रहा? It controls reabsorption of water in the loop of Henle. आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था लूप ऑफ हेनले में जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो आपका ये कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो हमारा पिट्यूटरी एडीएच सिक्रीट करता है, ये पानी को रीअब्जॉर्ब करवाता है ताकि बॉडी का वाटर पोटेंशियल मेंटेन्ड रहे। और अगर हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है तो ये हार्मोन बिल्कुल सिक्रीट नहीं होता और हमारी बॉडी से water is allowed to be excreted out in the form of urine. Okay, so ADH का क्या काम है? It is an antidiuretic hormone, ठीक है, which controls the reabsorption of water in the loop of Henle. ये conditional हार्मोन है, ये सिक्रीट तभी होता है जब हमारी बॉडी में अल्लाह भला करे पानी की कमी होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सबसे पहले आ रहा है इंसुलिन। ठीक है, अगला ये भी आप पढ़ चुके हैं, पहले मैं जल्दी से वो करवा दूं जो आप पढ़ चुके हैं। इंसुलिन इज secreted from the pancreas during high के सबसे पहला काम क्या करता है कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये सारे काम जो मैं लिखूंगी ना ये साइमल्टेनियसली ही करेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा। तो पहला काम ये क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट्स द एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्स इट इन द लिवर। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, इंक्रीजेस द permeability of the cell membrane ठीक है, ये 3 काम कर रहा है बेसिकली कि एक जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो है इंसुलिन जो सिक्रीट हो रहा है, इट इज़ कन्वर्टिंग एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। साथ ही साथ क्या करता है कि जो सेल्स होते हैं उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है ताकि सेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करें। और उसके अलावा इसके साथ साथ आपकी बॉडी का रेट ऑफ रेस्पायरेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ अप होके आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। अच्छा, वी नो that if insulin is not produced in the body, all of us are aware that a person will suffer from a disease known as diabetes mellitus. ठीक है, if you look on page 234, कैन यू प्लीज ओपन टू पेज 234। जो ग्रीन सेक्शन है वो हम फोकस करेंगे, जो पर्पल सेक्शन है वो इतना ज़्यादा हमें टाइप 1 टाइप 2 जो है वो नहीं फोकस करना। मैं अभी कटवा देती हूँ जो अननेसेसरी पार्ट है। ठीक है, पहले ग्रीन सेक्शन आप देखो टेबल 15.1 का। Isles of Langerhans, you guys already know that they are special kinds of cells of the pancreas that are producing the insulin hormone. ठीक है, क्या कब प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द स्टिम्युलस ऑफ दिस हार्मोन। स्टिम्युलस आपको पता है क्या होता है, अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो स्टिम्युलस इस हार्मोन का क्या है कि जैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा ये हार्मोन सिक्रीट होगा, दैट्स द स्टिम्युलस। ठीक है, हमारी बॉडी एनवायरनमेंट का चेंज क्या काम करेगा, इट इज इंक्रीजिंग, it decreases blood glucose by increasing the permeability of the cell membrane. Therefore, uptake of glucose is increased by the cells. Then glucose is converted into glycogen and stored in the liver and muscles. इसके अलावा increased oxidation of glucose, which is also known as respiration, takes place. Now, if there is a lack of secretion of this hormone, if our body is not able to secrete insulin, we know that we will be suffering from a disease known as diabetes mellitus. Lekin let's go through the contents in the book. Glucose cannot be stored or utilized by tissue cells, so blood glucose concentration rise and subsequently is lost in the urine. हमें पता है कि ग्लूकोज क्योंकि एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, और अगर एक्सेस ग्लूकोज होगा और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है वो यूरिन में लॉस होना शुरू हो जाएगा, और अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा होगा तो डेफिनेटली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, अच्छा इसके बाद the muscles will have no storage of glycogen. ठीक है, जब ग्लाइकोजन की स्टोरेज नहीं होगी तो डेफिनेटली मसल्स जो हैं वो वीक होंगे, वेट लॉस होगा। ठीक है, और क्यों वेट लॉस होगा, वेट लॉस इसलिए होगा कि जब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना होगा, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगी तो वो उसकी जगह फैट्स को ऑक्सीडाइज करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में यूज़ होगी। और इसका एक नुकसान ये होता है कि जब फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि कीटोन नाम का एक सब्सटेंस बनता है जो कि हमारी बॉडी में हार्मफुल होता है अगर स्टोर रहे, और नॉर्मल कंडीशंस में वो यूरिन में प्रोड्यूस रिमूव हो जाता है। सही। ओवर सिक्रीशन भी होती है इंसुलिन की। ओवर सिक्रीशन किस तरह से होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती है। ओवर सिक्रीशन होने से क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी को 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्री घूमते हुए चाहिए होंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे ओवर सिक्रीशन की वजह से, जिसकी वजह से बॉडी जो है के जो मेजर ऑर्गन्स हैं
जो आपकी बॉडी को अलाइव रखने के लिए काम होते हैं, उनको ग्लूकोज नहीं मिल जाएगा, बॉडी शॉक में जा सकती है, कोमा में जा सकती है, एंड डेथ माइट इवन अकर। ओके, सही। अच्छा, पर्पल वाले पोर्शन में आ जाओ, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे इसी पेज पे है। डायबिटीज मेलाइटिस इज अ डिजीज वेयर द बॉडी इज अनएबल टू कंट्रोल इट्स ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन सो दैट इट रिमेन्स विद इन सेफ लिमिट्स. As a result, the blood glucose concentration can reach a level that exceeds the kidney's ability to completely reabsorb the glucose. यानी किडनी जो है वो reabsorb लूप ऑफ हेनले में नहीं कर पाती ग्लूकोज, जिसकी वजह से वो यूरिन में चला जाता है. The glucose is not reabsorbed and excreted in the urine. सही. अच्छा, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2. दोनों को काट दीजिए, बिग एक्स बना दीजिए, क्योंकि वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. Signs and symptoms, yes, a persistent high glucose level and glucose in the urine after a meal are the main signs of diabetes mellitus. You should know this. Treatment क्या है इसका? Diabetics have to measure their blood glucose concentration and urine, test their urine regularly. They should also watch their diets. Acha, when they speak about watching diets, please keep in mind that by watching diet, it doesn't mean that you will be watching the amount of sugar that you are consuming. No, you have to monitor the amount of carbohydrates that are being utilized by the individual. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो शुगर तो यस एक मेजर सोर्स होती है ग्लूकोज की, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी जो हैं वो ग्लूकोज की मेजर सोर्सेज हैं. जैसे कि अगर कोई भगाड़े हुए चावल खाता है तो उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए उसको उबले हुए फॉर्म में ले आए. ठीक है, रोटी कम खाए, अगर रोटी खा भी रहा है तो एक्सरसाइज करे, ऐसे काम करे जिससे वो अपना ग्लूकोज को बर्न कर सके. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. इसके बाद जो बाकी का पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ हैव टू इंजेक्ट इंसुलिन इन द वेन्स. ठीक है, ये आपको बस ये पता होना चाहिए. ट्रीटमेंट में डेफिनेटली डाइट के अलावा दवाएं दी जाती हैं. दवाओं में सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं. ठीक है, ग्लूकोफेज हो गई, डेनेल हो गई, इस तरह की मेडिसिन होती है. मेडिसिन के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक है, कुछ मेडिसिन लेते हैं जो हमारे सेल्स की एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है ग्लूकोज की. ठीक है, तो वो यूरिन में पास आउट नहीं होता. और अगर जिन लोगों पे मेडिसिन असर नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं ताकि उनकी ये आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो एक्चुअली क्या कर सके, वो जाके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करवा सके. क्लियर? एनी क्वेश्चंस टिल हियर? पूछ लीजिए. टाइम इज ऑलमोस्ट अप. मैं जल्दी से अटेंडेंस ले लूं. एक मिनट, मोबाइल में अटेंडेंस खोल लूं आपकी. Okay. No questions? Sure? Sahi. Chalo. If you guys don't have any questions, let's start with the attendance. चैट खुली हुई है, जो चैट पे बताए वो चैट पे बता दे, बाकी माइक ऑन करके. मिस अच्छा बाजिल, ठीक है. मोहम्मद अहमद, आज मोहम्मद अहमद एब्सेंट है. एक मिनट, मोहम्मद अहमद एब्सेंट. इब्राहिम काजी, इब्राहिम काजी, आई कांट हियर यू बेटा. अगर यू आर इन क्लास में, मुझे एक तो कैमराज ही 1 मिनट के लिए खोल लो ना तुम लोग, तो बहुत सारी आसानियाँ. दोज दैट हैव जॉइंड इन, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अवेयर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट है ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह. इट्स गोना बी अ क्विज, अ मार्क क्विज. ओके, अल्लाह हाफिज, ऑल ऑफ यू, टेक केयर.